हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕਿਡ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੋ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਸਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਥਿਊਰਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਕਨਵਰਜਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਾਈਕ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ L ਤੇ ਇਫ ਗਿਵਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹਾਊਐਵਰ ਸਮਾਲ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ m। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ m ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਤੇ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ an ਮਾਈਨਸ L ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਫॉर ਐਵਰੀ n ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ L ਕੀ ਆ? ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਲਿਮਿਟ L ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਲਿਮਿਟ an ਇਕੁਅਲ ਟੂ L, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਿਮਿਟ an ਟੈਂਡ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟ an ਇਕੁਅਲ ਟੂ L ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ an tends to L as n to infinity simply an tends to L। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ an ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜਨ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ L ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਗਿਵਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹਾਊਐਵਰ ਸਮਾਲ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ m ਹੋਵੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ ਇਸ ਐਪਸਾਈਲਨ ਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ an ਮਾਈਨਸ L ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ L ਆ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਵੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਫॉर ਐਵਰੀ n ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m, ਠੀਕ ਹੈ। L ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। एग्जाम्पल मान लो एक सीक्वेंस है साढ़े को 1/n, ठीक है। मैं ले लिया गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल। आप एक नैचुरल नंबर अपने को m चूज कर लिया, ठीक है। सच दैट ये जो m ग्रेटर दैन है 1/एप्सिलॉन, ਜਾਂ कह सकते हैं 1/m लेस दैन है एप्सिलॉन, ठीक है। सो फॉर एवरी n ग्रेटर दैन इक्वल टू m सेम कंडीशन लगा देती। फॉर एवरी n ग्रेटर दैन इक्वल टू m तो तुहानूं पता जो डिवाइड जो होएगा 1/n की हो जाएगा लेस दैन इक्वल टू m 1/m। तो 1/m ਜਿਹੜਾ ਉਹ किसी ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀਗਾ ਐਪਸਾਈਲਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ 1/n ਮਾਈਨਸ 0 ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/n ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆਲਰੇਡੀ ਫॉर ਐਵਰੀ n ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ 0 ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। क्लियर है जी। सो ठीक है, बस सिंपल इतने उन्हें डेफिनेशन ही सेम डेफिनेशन अप्लाई कर दी, वही वाली डेफिनेशन जो डेफिनेशन उन्होंने दसिया सी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं। बट आने वाली नैक्सट वीडियो के मैं तुहानूं अलग अलग तरह के टैसट करवावांगी जिन्होंने टैसट नाल तुसीं ईजीली फाइंड कर सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। इस विच बस आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। सो ये ज़्यादा टेंशन नहीं लैनी कि किद्दां ये सॉल्व होने हैं, डोंट वरी। नैक्सट जिहदा सीक्वेंस दिता साडे को n/n+1, इत्थे मैं ले लिया फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल वी चूज अ नैचुरल नंबर m। असीं एक नैचुरल नंबर m चूज करते हैं सच दैट कि m ग्रेटर दैन है 1/एप्सिलॉन implies to 1/m less than epsilon for every n greater than equal to m we have। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੋ -1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ -1 ਕੀਤਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 1/n+1। ऑब्वियसली ना ये 1/n ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ 1/n ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1/n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ 2 ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ 1/2 ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ 1/2 + 1 ਤੋਂ। 1/3 यानी ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਤੋਂ। तो ये असी ऑलरेडी मान के चले हुए हैं कि लैस दैन इक्वल टू है 1/m तो 1/m लैस दैन की इक्वल टू है एप्सिलॉन, यानी कि अगर लैस दैन एप्सिलॉन। सो मैं कह सकती हूँ कन्वर्ज कर रहा 1 नूं, सिंपल है ना। सो नैक्सट देखो, नोट देखो नैक्सट सीक्वेंस an इज सैड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी an इक्वल टू फाइनाइट। ये याद रखना कोई भी सीक्वेंस an ना उन्होंने आप कन्वर्जेंट कदों कहने आ जो लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी उस सीक्वेंस से की हो जाए फाइनाइट आ जाए। कंडीशन की आ कि लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी मैं करा उस सीक्वेंस से वो की एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, ठीक है। उसी उस सीक्वेंस में की कहेंगे वो सीक्वेंस की होएगा कन्वर्जेंट। नैक्सट है सीक्वेंस an इज सैड टू बी कन्वर्जेंट इफ an कन्वर्जेंट टू सम लिमिट अदरवाइज an सैड टू बी नॉन कन्वर्जेंट। किसी सीक्वेंस में आप कन्वर्जेंट कदों कहने जो वो किसी लिमिट नूं कन्वर्ज करता, जे किसी लिमिट नूं कन्वर्ज कर रहा तां ही वो कन्वर्जेंट आ, अदरवाइज की है नॉन कन्वर्जेंट आ।
कंडीशन पता लग गई कन्वर्जेंट दियाँ। नैक्सट असीं गल करदे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस ए एन आ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਜ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਨਵਰਜ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜੇ ਕੇ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਹਾਊਐਵਰ ਲਾਰਜ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m जो डिपेंड करता k ते सच दैट a n ग्रेटर दैन k फॉर एवरी n ग्रेटर दैन इक्वल टू m। ठीक है, सो असीं इहनूं किद्दां लिख सकते हैं, a n टेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी a n इक्वल टू इनफिनिटी। हुण देखो फर्क की है, कन्वर्जेंट वाले च आपां इत्थे की लिखदे सी a n इक्वल टू l, जे तुहानूं याद होवे। देखो इहदे विच मैं की ले रही सी कि लिमिट l यानी किसी लिमिट नूं कन्वर्ज कर रहा सी, जो डिवर्ज कर रहा फिर आपां कित्ते लै रहे हैं इनफिनिटी। सो यही डायरैक्ट स्टेटमेंट्स कई बारी पेपर च पुछियां जांदियां। हुण एक सीक्वेंस a n आ, उहनूं आपां डिवर्ज करांगे माइनस इनफिनिटी नूं। इफ गिवन k ग्रेटर दैन 0 हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a n की आ गया लैस दैन माइनस k। उदा की सी a n ग्रेटर दैन k, जे माइनस इनफिनिटी की गल हुंदी आ फिर आपां की ले लेना a n लैस दैन माइनस k फॉर एवरी n ग्रेटर दैन इक्वल टू m। तुसीं इहदे बस शॉर्ट नोट्स बनाने आ कि जे डिवर्ज कर रहा प्लस इनफिनिटी नूं ते गिवन k ग्रेटर दैन 0 लिए कंडीशन हैगी आ, जे माइनस इनफिनिटी नूं फेक की कंडीशन आ। मेन तुसीं यही नोट करनी आ। नैक्सट नोट हैगा एक सीक्वेंस ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਰਜ an ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ, ਉਹ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਈਨਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ an ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ n ਟੈਂਡ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਫਾਈਨਾਈਟ। ਤੇ ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾਟ ਫਾਈਨਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਨਬਾਊਂਡਡ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਬਾਊਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ऑसीलेटरी सीक्वेंस की होंगे, ये जो सीक्वेंस ना कन्वर्ज करे ना डिवर्ज करे उन्होंने आप बोलते ऑसीलेटरी। जिदा बाउंडेड सीक्वेंस एन विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट उन्होंने आप सैट टू बोलांगे ऑसीलेटरी फाइनाइटली। तो अनबाउंडेड जो डिवर्ज करे ना प्लस इनफिनिटी ना माइनस उन्होंने ऑसीलेटरी इनफाइनाइटली कहांगे। जोड़ा बाउंडेड देखो बाउंडेड सीक्वेंस मान लो बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड से कन्वर्ज होना चाहिए ही बट बाउंडेड और कन्वर्ज नहीं है, फिर उन्होंने आप कहना कि वह ऑसीलेट कर रहा फाइनाइटली। बट जे अनबाउंडेड ठीक है विच जो डिवर्ज ही नहीं कर रहे, जब कि अनबाउंडेड डिवर्ज होने चाहिए बट अनबाउंडेड डिवर्ज नहीं कर रहा, यदा मतलब ऑसीलेट कर रहा इनफाइनाइटली। ये पूछा जा सकता डायरैक्ट स्टेटमेंट पेपर च ना इदा बोल सकता एन अनबाउंडेड सीक्वेंस एन विच डिवर्ज नाइडर प्लस इनफिनिटी नॉर माइनस इनफिनिटी इज सेट टू बी। वो 4 ऑप्शन देगा, ऑसीलेट फाइनाइटली, ऑसीलेट इनफाइनाइटली, कन्वर्जेंट, इदा अलग अलग ऑप्शन देगा। तो तुहानूं ये पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है -1 की पावर n। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस लिया हुआ ये ऑसीलेट करता फाइनाइटली बट जो -1 की पावर n इंटू n लवा ये ऑसीलेट करता इनफाइनाइटली। डायरैक्ट कई बार ना यही एग्जाम्पल्स चक के पेपर च पा देंगे हो, ध्यान रखना। इतने 2 आर्टिकल है बस तुम उन्होंने हैडिंग नोट करने आ, मेन नोट्स है। यूनीकनेस ऑफ लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जे कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उन्हें बोला इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट दैन इट कन्वर्जेंस टू अ यूनीक लिमिट। मतलब जे कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैगा ना वो किसी यूनीक लिमिट में कन्वर्ज करेगा ही करेगा। मैं अगेन रिपीट कर दी कि जे कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है यदा मतलब वो कन्वर्ज करेगा किसी यूनीक लिमिट में। जिदा आप किया भी लिमिट एंड इनफिनिटी सीक्वेंस ए एन इक्वल टू एल आ गया सी कन्वर्जेंट च, वो इनफिनिटी च नहीं सीगा, वो किसी यूनीक लिमिट में ही कन्वर्ज करेगा। सो ये गल ध्यान रखनी। एक यदा नोट होर देखो हैगा जिहड़ा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना वो बाउंडेड हुंदा। ठीक है, प्रूव दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तुसीं प्रूव नहीं करना, तुसीं याद रखना कि जिहड़ा कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ वो हमेशा की हुंदा बाउंडेड। जिद्दां आपां कीता है ना दूसरा अनबाउंडेड हुंदा, ये याद रखना ये हमेशा साडे कोल कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हुंदा बाउंडेड हुंदा। ठीक है, नैक्सट है नोट इफ सीक्वेंस इज अनबाउंडेड दैन इट इज़ नॉन कन्वर्जेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो सीक्वेंस देता है ए एन इक्वल टू एन स्क्वेयर इज नॉट कन्वर्जेंट दैन इट इज़ नॉट बाउंडेड। यानी मतलब ये बाउंडेड भी नहीं सी। ठीक है, उन्हें दस दिता जो सीक्वेंस कोई अनबाउंडेड आ दैन मतलब ये कि है नॉन कन्वर्जेंट है। मतलब जो कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड आ दैन इट इज़ नॉन कन्वर्जेंट। नैक्सट प्रूव दैट अ सीक्वेंस विच इज़ डाइवर्ज टू प्लस इनफिनिटी इज़ बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव। जोड़ा सीक्वेंस इदा का है जो डिवर्ज कर रहा प्लस इनफिनिटी और बाउंडेड बिलो होएगा बट अनबाउंडेड की होएगा अबव होएगा। तो जोड़ा सीक्वेंस डिवर्ज करता पे माइनस इनफिनिटी और बाउंडेड अबव होएगा।
ठीक है, उपरों बाउंडेड होएगा बट अनबाउंडेड होएगा बिलो तो वो अनबाउंडेड होएगा, मतलब नीचे तो अनबाउंडेड होएगा, उस तो ऊपर की होएगा बाउंडेड रहेगा। क्लीयर, ये सिंपल आर्टिकल्स है, डायरैक्ट इन्होंने एज अ थ्योरम्स लियो तो इन्होंने नोट डाउन करते जाओ। नैक्सट मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में आप मोनोटोनिक इनक्रीजिंग कदों कहने हैं, जो उसमें मैं एक प्लस करके जो सीक्वेंस बनाया वो ग्रेटर दैन हो जाए पिछले सीक्वेंस नालों फॉर एवरी एन ग्रेटर बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग जो ए एन की हो जाए ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाए अपने एक जो मैं ऐड करके उस तो अगे सीक्वेंस बनाया, ठीक है, ये हो गया मोनोटोनिक इनक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग। अगे उन्होंने दसा सीक्वेंस विच इज़ मोनोटोनिक इनक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। इदा का सीक्वेंस विच इज़ मोनोटोनिक इनक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग उन्होंने आप बोलते मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, या मोनोटोनिकली इनक्रीज कर जाए भावें डिक्रीज करवे वो की हो गया मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इनक्रीजिंग कदों होंदा जो स्ट्रिक्टली मतलब इक्वल टू की गल खत्म विचों, ठीक है, मतलब कि इक्वल टू हटा दो फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इनक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। जिदा सीक्वेंस आ 1/n ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इनक्रीजिंग आ, जो n की पावर 4 है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, ऊपर वाला स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इनक्रीजिंग आ, ठीक है। तो ये बना के भी देख सकते अगे एक ऐड करके यदि -1 की पावर n है, ये ना मोनोटोनिकली इनक्रीजिंग आ नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ। हुण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट डाउन करने लई। मोनोटोनिक जिहड़े इनक्रीजिंग सीक्वेंस होंदे हैं ना वो कन्वर्ज करते हैं जे ये बाउंडेड अबव होण। हुण पेपर च पूछा जा सकता कि मोनोटोनिक इनक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ ऑप्शन देगा अलग अलग जो हुण बाउंडेड अबव, ठीक है। द लिमिट ऑफ ए एन वैन इट कन्वर्जिज इट्स LUB लोअर अपर बॉन्ड जोड़े होंगे आ, ठीक है, ऑफ ए एन। नैक्सट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन कन्वर्जिज इफ इट्स बाउंडेड बिलो, हाँ ये जिदा बाउंडेड अबव क्या, ठीक है, ये की होएगा फिर वही बाउंडेड बिलो, सॉरी ये कंडीशन क्या वैन इट कन्वर्जेड इज़ दी GLB ऑफ AN, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड आ जाएंगे ये। प्रूफ दैट द मोनोटोनिक इनक्रीजिंग सीक्वेंस AN कन्वर्ज करेंगे प्लस इनफिनिटी नूं जे अनबाउंडेड अबव होणगे, इदां हुण डिक्रीजिंग सीक्वेंस माइनस इनफिनिटी नूं कदों करनगे जे ये अनबाउंडेड बिलो होणगे। ये 4 कंडीशनस आ, इन्हां नूं याद रखना एज इट इज़, ठीक है। बाकी जिहड़े क्वेश्चनस मैं सॉल्व कराने ना उहदे लई मैं टेस्ट करवा देने आ, इहदे विच तां तुसीं जस्ट इन्हां नूं एज अ थ्योरम्स लो, ठीक है। नैक्सट मोनोटोनिक इनक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो सकते या फिर डाइवर्ज कर सकते प्लस इनफिनिटी में। देखो ਜਿਹੜੇ इनक्रीजिंग है या तो कन्वर्जेंट हो जाएंगे या फिर जो डाइवर्ज करेंगे ना प्लस इनफिनिटी ਨੂੰ करेंगे प्लस ਨੂੰ, ठीक है। इदे ਜਿਹੜੇ डिक्रीजिंग आ या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्ज करेंगे माइनस इनफिनिटी ਨੂੰ। तो ये याद रखिए जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है कभी भी ऑसीलेटरी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो नैसेसरी तो सफिशेंट कंडीशन की होंगी आ फॉर दी कन्वर्जेंस ऑफ अ मोनोटोनिक सीक्वेंस कि ये जोड़ा है बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। की है कन्वर्जेंट जो आप पहला भी पढ़ के आए बाउंडेड होना चाहिए, डाइवर्जेंट लिए की सीगा अनबाउंडेड होना चाहिए, वही कंडीशन रिपीट्स हो रही है, नोट दिता होया। एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ए तो BN दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ, लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी AN इक्वल टू A, लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी BN इक्वल टू B। दैन इन्हों से कोई भी तुहानूं पेपर च पूछा जा सकता एक, ठीक है। फिर जो आप मॉड लवेंगे वो ए दे बराबर ही रहेगा, जो -AN लिखांगे -A के बराबर आएगा, KAN लिखांगे KA आएगा, क्योंकि इक्वल टू ए दिता ना n टेंड टू इनफिनिटी, फिर तुसीं ए पुट कर दो A प्लस B A माइनस B आ गया, मतलब बस ये समझो देख लो की हो रहा कि बस BN नूं B लिख रहा AN नूं A लिख रहा जो ए वाली कंडीशन होएगी, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। नैक्सट है जी साडे को एक आर्टिकल प्रूव करना कि सीक्वेंस A की पावर n डाइवर्ज करता प्लस इनफिनिटी जो A ग्रेटर दैन 1 होंदा, ऑसीलेट फाइनाइटली करेगा जो A इक्वल -1 होएगा, कन्वर्ज करेगा इफ -1 लैस दैन A लैस दैन इक्वल टू 1, तो ऑसीलेट इनफाइनाइटली इफ A लैस दैन इक्वल टू लैस दैन -1। हुण तुसीं इहनूं याद रखना ये आर्टिकल आ तुहानूं पेपर च ए दी कोई भी वैल्यू देगा, ठीक है। लेट्स सी कोई वैल्यू दिंदा ए देता उन्हें ग्रेटर दैन 1 यानी 2 की पावर n देता, तो ये सीक्वेंस की होएगा फिर डाइवर्ज करेगा प्लस इनफिनिटी में, ठीक है। की करेगा डाइवर्ज करेगा प्लस इनफिनिटी में। ऑसीलेट फाइनाइटली इफ A इक्वल टू -1 जी का -1 की पावर n लेना फिर होएगा ऑसीलेटली फाइनाइटली। कन्वर्ज कदों करेगा जो इन्होंने दोनों के विचकार कोई वैल्यू है जी, तो ऑसीलेट इनफाइनाइटली कदों करेगा जो A लैस दैन -1 प्लस से -2 आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो तुहाडा आर्टिकल बनता, ये आर्टिकल जो डायरैक्ट क्वेश्चन पुट हो सकता, बस तुहानूं ये कंडीशनस पता होनी चाहिए। ये कंडीशनस चंगी तरह नोट कर लेना, है कुछ औखा नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी आ, किते भी आप ईजी वे नाल ना। हुण मैं तुहानूं एक बार सारा रिपीट करवा देना है दोबारा तो, ठीक है, ताकि एक रिकैप हो जाए।
देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की गल की आपां देखिया ही जिहड़े सीक्वेंस ए है ना उन्होंने आपां कन्वर्जेंट कदों कहने किसी लिमिट एल ते किसी देखो कन्वर्ज करनगे किसी लिमिट नूं यूनीकनेस है दी किसी लिमिट ते जाणगे ठीक है। तो बाकी उन्होंने वही दसिया कि कंडीशन की आ कंडीशन ये है कि ए एन माइनस एल लैस दैन एप्साइलन फॉर एवरी एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम या फिर इनू इदां भी लिखा जा सकता। तो आप याद रखने 1/n बट मैं इन्हां दे तुहानूं होर भी बहुत सारे टेस्ट तरीके करा देने कि किद्दां असीं पता कर सकते ये सीक्वेंस जिहड़ा आ वो कन्वर्जेंट हैगा ठीक है। सो उस तो बाद ये सेम आ गया सी सीक्वेंस कन्वर्ज कदों करेगा तो ये जो भी कन्वर्ज करेगा ना उस सीक्वेंस से जो मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करा दूँ हमेशा फाइनाइट ही आएगी ठीक है हमेशा की आएगी फाइनाइट। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस से आप की गल की सी डाइवर्जेंट सीक्वेंस डाइवर्ज करते इन्फिनिटी नूं जे के ग्रेटर दैन जीरो है तो माइनस इन्फिनिटी में जे के ग्रेटर दैन जीरो बट ए एन की आ जाता उत्थे लैस दैन माइनस के तो ये केस ए एन की आ जाता ग्रेटर दैन के क्लीयर के मैं ग्रेटर दैन जीरो ही लिया हाउएवर लार्ज बट उत्थे जो सीक्वेंस ए एन ना वो ग्रेटर दैन की आ गया के फॉर एवरी एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम बट जो डाइवर्ज करता माइनस इन्फिनिटी नूं फिर यही ए एन सीक्वेंस लैस दैन की आ गया माइनस के फॉर एवरी एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम क्लीयर। उस तो बाद आप ये दसिया सीक्वेंस जो ए एन उन्होंने डाइवर्ज कदों करने जो उन्होंने को डाइवर्ज जो होंगे आ फिर आप लिमिट एन टेंड इन्फिनिटी ए एन की कहने नॉट फाइनाइट तो जो अनबाउंडेड आ हमेशा डाइवर्ज होंगे सॉरी जो डाइवर्ज सीक्वेंस वो हमेशा अनबाउंडेड होंगे बट ये जरूरी नहीं हर अनबाउंडेड जो डाइवर्ज ही हो ठीक है। सो ये कंडीशन भी ध्यान रखना और डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अनबाउंडेड ठीक है। ऑसीलेटर के ना कन्वर्ज करन ना डाइवर्ज करन तो वो एग्जाम्पल्स दित्तियां ही अलग अलग ऑसीलेट फाइनाइट तो इनफाइनाइटली। बाकी ये मैं दसा यूनीकनेस एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है दैन इट्स कन्वर्जेंस टू अ यूनीक लिमिट हमेशा एक यूनीक लिमिट नूं ही कन्वर्ज करेगा तो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ बाउंडेड ही होंगे ठीक है। तो जे एक सीक्वेंस अनबाउंडेड आ दैन इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट एग्जाम्पल दी हुई है जे प्लस इन्फिनिटी नूं करते हैं तो बाउंडेड अबव होणगे अबव ठीक है तो नॉट बट अनबाउंडेड सॉरी बाउंडेड बिलो सॉरी प्रूव एक सीक्वेंस है विच डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी की गल की तो ये बाउंडेड बिलो होएगा बट अनबाउंडेड अबव मैं यानी कि उपरों अनबाउंडेड रहेगा बट बिलो तो बाउंडेड रहेगा ठीक है। यदि माइनस इन्फिनिटी तो बाउंडेड अबव होएगा बट अनबाउंडेड बिलो होएगा। ये कंडीशनस थोड़ियां लिख के एक दो बार याद कर लेना हो जाएगियां ठीक है। यदि मोनोटोनिक सीक्वेंस दियां ये तुसीं पहला भी पढ़िया हुई आई थिंक ये वाली कंडीशनस बाकी ये वाले याद रखने तुसीं। टैक्सट मैं तुहानूं दस दित्ता मोनोटोनिक इनक्रीजिंग सीक्वेंस या कन्वर्जेंट हो सकते हैं तो या डाइवर्ज कर सकते प्लस इन्फिनिटी नूं सिमिलरली इन्हां दियां अलग अलग कंडीशनस आ एंड ये फॉर्मूलेस तुहानूं दस्से होए तो ये वैरी इंपॉर्टेंट मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। तुसीं इत्थे ए दी वैल्यूज़ देखनी ग्रेटर दैन 1 -1 या फिर -1 तो +1 दे विच लाई कर रही है इक्वल टू 1 ही है जो लाइक 1 की पावर n आ गया ठीक है तो कन्वर्ज कर जाएगा ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। सो जो वीडियो पसंद है मैं लाइक एंड कमेंट करके जरूर दसना। नैक्सट वीडियो मैं तुहानूं टैस्ट कुछ करवावांगी तो आप ईजीली खत्म कर लवांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।